درگزر کرتا ہے، بہت زیادہ معاف کرتا ہے اپنے باس کو. جب تک میرے ساتھ اچھے ہو تب تک میں اچھا ہوں، اور اگر میرے ساتھ برا کرو گے تو دیکھ لو مجھ سے برا کون ہے. یہ اچھے اخلاق کا ڈیفینیشن نہیں ہے. جیسے ابن عساکر میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اکثر خطایا ابن آدم فی لسانہ، اکثر خطائیں آدم کی اولاد کی اس کی زبان کی وجہ سے ہوتی ہے. تو زبان اور پرائیویٹ پارٹس یہ دو وجہیں ہیں جس وجہ سے سب سے زیادہ لوگ جہنم میں جانے والے ہیں. کہ آخر میں شخص جہنم گیا کیوں؟ اس کی زبان کی وجہ سے، اور بیکاز اس نے اپنے پرائیویٹ پارٹس کی حفاظت نہیں کی، حرام چیزوں سے، غلط چیزوں سے، اس وجہ سے وہ جہنم کی آگ میں جائے گا. تو جو دو فیکٹرز ہیں جو سب سے زیادہ لوگوں کو جنت لے جائے گی وہ کیا ہے؟ تقوی اور اچھا اخلاق. کیا ایسی چیز کم ہو سکتی ہے؟ کیا ایسی چیز کو ہمیں ایکسٹرا سمجھنا چاہیے؟ تو یہ ہو گئی ہماری تیسری حدیث، یہ بہت آسان ہے یاد رکھنا. نمبر 4، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ، میں گارنٹی دیتا ہوں جنت کے آخری علاقے میں گھر کی، جنت کا جو لاسٹ ایریا ہے، بالکل لاسٹ ایریا جنت کا، وہاں پہ گھر کی گارنٹی دیتا ہوں میں اس شخص کو من ترک المراء وان کان محقا، جو صحیح ہونے کے باوجود بھی حجت بازی نہیں کرتا. حجت بازی صحیح ہونے کے باوجود بھی نہیں کرتا. یہاں پہ بات کیا ہو رہی ہے؟ پرسنل میٹرز کی بات ہو رہی ہے. یہاں پہ دین کی باتیں جس کے اندر کوئی شخص حجت بازی پہ اتر آئے تو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے لاسٹ ریزورٹ کے طور پر. سورہ نحل سورہ 16 آیت نمبر 125 میں وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہ ان کے ساتھ حجت کرو بہترین طریقے سے. نمبر 3 پہ یہ چیز مینشنڈ ہے. لیکن پرسنل میٹرز میں اگر آپ کو پتا ہے کہ آپ صحیح ہے اور آپ کو پتا ہے کہ سامنے والا غلط ہے اور پتا ہے کہ میں صحیح ہوں اور پھر بھی آرگیو نہ کریں پرسنل میٹرز میں، تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو گارنٹی دی کس چیز کی؟ جنت کے لاسٹ ایریا میں گھر کی. چلو وہاں تو پہنچ جائے، اس کے آگے اور پہنچنے کی کوشش کریں گے، ادھر تو پہنچ جائے. تو میرے برادرز یہ ایک بہت پیاری گارنٹی ہے. پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انا زعیم ببیت فی وسط الجنہ، میں گارنٹی دیتا ہوں جنت کے مڈل پورشن میں گھر کی اس شخص کو من ترک الکذب وان کان مازحا، جو مذاق میں بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دے، مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسے شخص کو جنت کے مڈل ایریا میں ایک گھر کی گارنٹی میں دیتا ہوں. وانا زعیم ببیت فی اعلی الجنہ، اور جنت کے ٹاپ موسٹ پورشن میں گھر کی گارنٹی دیتا ہوں اس شخص کو من حسن خلقہ، جو اپنے اخلاق کو اچھا بنائے. مطلب ابھی یہاں بات کیا ہو رہی تھی؟ ابھی تک بات ہماری ہو رہی تھی پہلی حدیث میں کہ کتنی بڑی نیکی ہے درجۃ الصائم والقائم. سیکنڈ حدیث میں بات ہوئی کہ ترازو کے اندر سب سے بھاری چیز کیا ہے؟ اچھا اخلاق. پھر تھرڈ حدیث میں بات ہوئی کہ جنت جانے میں سب سے بھاری فیکٹر، سب سے بڑے فیکٹرز میں تقوی اور اچھا اخلاق، کیونکہ ترازو بھاری ہوگا تو جنت پہنچے گا کوئی شخص. کنیکشن بھی ہے، دیکھیے تینوں حدیثوں میں کنیکشن ہے. اب چوتھی حدیث میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اعلی الجنہ، جنت کے ٹاپ موسٹ پورشن کی بات ہو رہی ہے. مطلب لاسٹ کی نہیں بلکہ ٹاپ موسٹ پورشن میں من حسن خلقہ، جو اپنے اخلاق کو اچھا بنائے، جو اپنے اخلاق کو اچھا بناتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جنت کے ٹاپ موسٹ پورشن میں اس سے گھر کی گارنٹی میں دے رہا ہوں. اور پانچویں حدیث میں کیا آئے گا؟ پانچویں حدیث میں یہ آ رہا ہے، یہ حدیث مسند احمد میں، ابن حبان میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے قریب میرے وہ لوگ ہوں گے جن کا اخلاق اچھا ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا احسنکم اخلاقا، تم میں اخلاق کے معاملے میں جو سب سے اچھے ہیں وہ آخرت میں میرے سب سے قریب ہوں گے، اور مجھ سے سب سے دور وہ لوگ ہوں گے، وہ اخلاق کے معاملے میں جو سب سے برے لوگ ہیں وہ مجھ سے سب سے دور ہو گئے آخرت میں. تو میرے بھائیوں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اس کے ٹائپ کے ہوتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا قرآن میں سورہ قلم میں سورہ 68 آیت نمبر 4 وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اخلاق کے بالکل ٹاپ موسٹ لیول پر ہو، اخلاق کے بالکل ٹاپ موسٹ لیول پر آپ ہو. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب اللہ نے کہا کہ سب سے ٹاپ موسٹ لیول آف اخلاق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا، انہوں نے ڈسپلے کیا، اور جو چیز کی گواہی صحابہ دیتے ہیں. آپ دیکھیے صحیح بخاری کی حدیث، انس رضی اللہ عنہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 10 سال تک ان کی خدمت کی، سرونٹ تھے، خادم تھے، 10 سال تک خدمت کی. ایک بار بھی ایسا نہیں ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا ایسا کیوں کیے، اور ایک بار بھی یہ نہیں کہا ایسا کیوں نہیں کیے. دھتکارنا دور کی بات، گالیاں دینا دور کی بات، مارنا پیٹنا دور کی بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار یہ بھی نہیں کہا کہ ایسا کیوں کیے، ایسا کیوں نہیں کیے. ناٹ ایون ونس، ایسا نہیں کہا. ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹاپ موسٹ لیول آف اخلاق کے تھے. کتنی ساری مثالیں ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے. ایک بار ایک اعرابی آیا
मस्जिद में, और मस्जिद में आकर एक साइड पर जाकर यूरिनेट करने लगा। अब जब सहाबा ने देखा ये तो उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था और उठने लगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको रोका। ऑब्वियस बात है कि वो अभी पेशाब कर रहा है, वो टाइम पे जाके तुम उसे रोकोगे तो बहुत सारे रॉन्ग रिएक्शंस आ सकते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ये भी बात है कि वो यूरिन दूसरी जगह पे भी स्प्रेड हो सकती है, उनके ऊपर भी आ सकती है, बहुत कुछ हो सकता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको रोका। जब वो फिनिश कर लिया तो उसे कहा कि ये अल्लाह का घर है, यहाँ पे कुरान की तिलावत के लिए है, नमाज के लिए है, जिक्र के लिए है, यहाँ टॉयलेट और पेशाब पाखाना इसके लिए नहीं है ये। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी मंगाया और पानी मंगा करके वहां पर डाल दिया। हम क्या सीख रहे हैं कि कैसे उन्होंने करेक्ट किया कि आज तक उनकी तालीमात के असर हम तक पहुंचे हैं, आज तक हमने उनकी तालीमात का बेनिफिट हासिल किया है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खुद अच्छे अखलाक के हैं तो हमें बता रहे हैं कि क़यामत के दिन, क़यामत में, आखिरत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे करीब वो लोग होंगे जो अच्छे अखलाक वाले होंगे। यानी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ होंगे? जन्नत में होंगे, जन्नत के सबसे आला दर्जे में होंगे। तो अच्छे अखलाक वाले भी वहां होंगे और वो लोग जो बुरे अखलाक वाले हैं वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे दूर। यानी अगर किसी का अखलाक ठीक है, मीडियम है, तो वो नीचे 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 यहां तक आके सबसे दूर। और हम देखते हैं कि जहन्नम कहाँ है? जहन्नम नीचे है, असफल नीचे। जहन्नम नीचे है तो वो नीचे वालों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे दूर वो लोग होंगे जो अखलाक के मामले में बुरे होंगे। अब देखिए यहाँ पे 5 पॉइंट्स है। फर्स्ट पॉइंट क्या था? साइम और कायम। सेकंड पॉइंट क्या है? तराजू में। अब पहला तो हमने दर्जा देख लिया कितनी बड़ी नेकी है। सेकंड पॉइंट में हमने क्या देखा कि तराजू में सबसे भारी चीज क्या निकलेगी? अच्छा अखलाक निकलेगा। तो हमारे लिए भी ये है, जिससे आप मोहब्बत करते हो उन तक ये बात पहुंचाओ। नेकी कंटेजियस होती है, जब कोई आपको देखेगा तो खुद भी अच्छा अखलाक इख्तियार करने की कोशिश करेगा। थर्ड पॉइंट में हमने क्या देखा कि जन्नत जाने में सबसे बड़ा फैक्टर तकवा और अच्छा अखलाक है। चौथे पॉइंट में हमने क्या देखा? आलल जन्ना, सबसे टॉप लेवल ऑफ जन्नत की गारंटी दी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अच्छे अखलाक वालों को। और पांचवी हदीस में हमने क्या देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब होना है। हर कोई कहेगा मुझे होना है, लेकिन रियली होना है तो दुनिया में हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है कि हम अपने अखलाक को अच्छा बनाएं। अब अगर कोई शख्स अच्छा बनाता है तो उसके बेनिफिट्स उसकी पूरी जिंदगी में आ जाती है। अब मेरे भाइयों, यहाँ क्या होता है कि बहुत सारे लोगों में एक आदत होती है कि इस्लामिक लेक्चर्स को, दुरूस को, एनकरेजमेंट को थ्योरेटिकली सुनते हैं, प्रैक्टिकली नहीं सुनते। प्रैक्टिकली अगर सुनेंगे तो उसमें हमें अपने आप को इन तालीमात के सामने लाना होगा। हमें फेस टू फेस देखना होगा कि मेरे अंदर मेरा मामला कहाँ है, मैं कैसे स्टैंड हो रहा हूं। क्योंकि यहाँ पर मामला ये है कि दुनिया की जिंदगी एक इम्तिहान है। इसके अंदर बहुत सारे लोग जीते हैं, बहुत सारे लोग इसमें डिल्यूट होते हैं, बहुत सारे लोग धोखे में पड़ जाते हैं, बहुत सारे लोग भटक जाते हैं और पास आने होने वाले लोग कम होते हैं, बहुत कम होते हैं। तो हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम इसमें इस रियलिटी पे नजर रखकर अपने आप को पास होने वालों में बनाएं। तो आइए मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आइए हम सब अपना मुहासबा करें, अपना जायजा लें कि हम कैसे हैं। अच्छे अखलाक की बात शुरुआत दिल से हो रही है, क्योंकि अगर दिल अच्छा होगा तो आगे की चीजें अच्छी होगी। दिल में क्या कीना है, दिल में क्या बुग़्ज़ है, दिल में क्या हसद है, दिल में क्या बुराई है, ये अखलाक से टकराने वाली चीजें हैं। उसका इफेक्ट आएगा तमाम जिस्म के आज़ा पर, पार्ट्स ऑफ द बॉडी पर। तो आंखों से वही चीज एक इंसान देखेगा जिससे अल्लाह राजी है, कानों से वही चीज सुनना पसंद करेगा जिससे अल्लाह राजी है। कानों से गीबत नहीं सुनेगा, झूठ सुनना नहीं पसंद करेगा, किसी की इज्जत खराब हो रही है वो पसंद नहीं करेगा, वो उसे डिफेंड करेगा। जुबान से वही कहेगा जिससे अल्लाह राजी है। जो जुबान से सारी चीजें हैं, जो गीबत है, झूठ है, बुराई है, किसी के दुख पहुंचाना, किसी को तकलीफ देना, किसी को बुरे नामों से पुकारना, किसी के ताल्लुक से चुगलियां करके झगड़े लगवाना, तो ये क्या है? ये बुरा अखलाक है। बुरे अखलाक में हाथों से क्या आप किसी की मदद कर रहे हो, किसी को तकलीफ पहुंचा रहे हो। पाँव से क्या अखलाक आ रहा है? तो ये पूरा जिस्म जो है, ये अखलाक हर जगह पर नुमाया होगा, हर जगह पे मैनिफेस्ट होता है। तो मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मैं आप सबको ये चीज के ताल्लुक से उभारना चाहता हूं कि हम सब अपना एक मुहासबा करें, अपना एक जायजा लें कि कहीं कोई शख्स आ रहा है जिससे आपका करोड़ों का फायदा हो सकता है, या कोई ऐसा शख्स आ रहा है जिससे कुछ बेनिफिट है, आपका कुछ तो फायदा है, या आपको ये पता है कि इसके साथ मैं बुरा रहूंगा ना तो ये मुझे छोड़ेगा नहीं। कभी डर की वजह से आदमी अच्छा अखलाक रखता है, किसी से डरता है तो उससे अच्छा अखलाक रखता है, बाकी किसी को डरा सकता है तो उसके साथ बुरा अखलाक रखता है। आइए मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हम सब अपना जायजा लें, अपना मुहासबा करें, हम अपने आप को असेस करें कि मैं कहां स्टैंड होता हूं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ये कहा, इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिमा सालिहल अखलाक,
मुझे भेजा ही इसलिए गया है ताकि मैं अखलाक की तालीमात को कंप्लीट करूं, बताऊं। मतलब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नबूवत के मकसदों में से एक बहुत बड़ा मकसद ये बताया कि आई वाज सेंट, मुझे भेजा इसलिए गया था ताकि मैं अखलाक की तालीमात को कंप्लीट करके पूरी तालीमात को लोगों के सामने प्रेजेंट करूं, बताऊं, उन्हें तालीमात सिखाऊं, और उन्होंने प्रैक्टिकली सिखाया। तो हम देख रहे हैं कि अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक बार एक शख्स ने पूछा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेकी क्या है और बुराई क्या है? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, सही मुस्लिम की हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नेकी अच्छा अखलाक है और बुराई कोई चीज अगर तुम्हें दिल में चुभ रही है और तुम्हें ये चीज बुरी लगे कि किसी को मालूम नहीं पड़ना चाहिए, अगर तुम्हें ये चीज डर है कि कोई मुझे देख ना ले ये चीज करते हुए, यही तो गुनाह है। तो अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अच्छे नेकी का डेफिनेशन ये बताया, अच्छा अखलाक ही नेकी है। नेकी क्या है? अच्छा अखलाक है। अच्छा अखलाक नेकी है, तो नेकी ही है अच्छा अखलाक। तो मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये हम सबके सामने बात है। आइए एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज करें। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज ये करते हैं कि हम सब याद करते हैं कि मेरे अंदर क्या प्रॉब्लम है, मेरे अंदर क्या चीज है, और यही इसी वक्त हम इरादा करें इन नसीहतों को सुनने के बाद, कुरान और हदीस की बात को सुनने के बाद, कि नहीं, आई वांट, मुझे चाहिए वो नेकी जो अस्कलु फिल मीज़ान, तराजू में सबसे भारी नेकी है, जो दरजत साइम वल कायम मुझे पहुंचा दे, जो जन्नत पहुंचने का जरिया बने और आलल जन्नत मुझे लेकर जाए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब लेकर जाए। आई वांट दिस, मुझे नेकी चाहिए। देखिए, आदमी को वो मिलता है जो वो चाहता है। अगर कभी दिल में, आप याद रखिए, चाहत पैदा हो गई ना किसी चीज की, सुना और लेटर एक इंसान के अंदर बहुत हाई चांसेस है कि वो चीज उसके अंदर आ जाएगी। कई लोग होते हैं जिनके अंदर कोई बुराई की चाहत दिल में आ जाती है, सूनर और लेटर वो उस बुराई में जाकर मुब्तला हो जाते हैं, क्योंकि अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और कुरान की आयत है इस ताल्लुक से, इंसान को वही मिलेगा जिस चीज की वो खुद कोशिश करेगा। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आइए हम अपने पोर्शन के, अपने इस आज के दर्स के, लेक्चर के आखिरी पोर्शन में आते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा। टीन फॉर टीन्स। देखिए निसार नडियाडवाला के साथ टीनेजर्स के लिए ऐसा सबक जो जिंदगी की सच्चाई को इस्लाम की नजरों से महसूस करा दे। हर जुमा दोपहर 3:30 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ i+ टीवी पर, बेहतर जिंदगी के लिए। बेटियां जहमत हैं या सरापा रहमत, बहनें मुसीबत हैं या सरापा खैर व बरकत, बीवियां कैसे बनेंगी राहत और माँ के कदमों तले कैसे मिलेगी जन्नत। आदम की बेटियां, शेख शमीम फौजी के साथ देखिए इस्लाम में क्यों है औरत का बुलंद मकाम। हर बुध दोपहर 3:30 बजे और रात 9:30 बजे सिर्फ i+ टीवी पर, बेहतर जिंदगी के। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा। मैं आपके साथ एक मास्टर की शेयर करना चाहता हूं। एक मास्टर की है जिससे अच्छे अखलाक का दरवाजा और खजाना खुल सकता है। और 3 हदीसें मैं आपके सामने पढ़ूंगा। ये तीनों हदीसों में एक चीज कॉमन है, वही चीज मास्टर की है। मैं हदीसें पढ़ने के बाद आप लोगों से पूछूंगा और आप लोगों को इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करना है। पहली हदीस, ये हदीस है सुनन अबू दाऊद में सही सनद से। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अकमलुल मोमिनीना ईमानन अहसनुहुम खुलुकन। ईमान के मामले में जो सबसे कामिल मोमिन होते हैं, जिनका ईमान सबसे अच्छा स्ट्रांग होता है, मुकम्मल होता है, कंप्लीट होता है, वो लोग अखलाक के मामले में अहसनुहुम खुलुकन, अखलाक के मामले में सबसे अच्छे होते हैं। पहली हदीस, अकमलुल मोमिनीना ईमानन अहसनुहुम खुलुकन। सेकंड हदीस, और ये हदीस के बारे में एक और बात बताऊं कि इमाम नववी एक बहुत बड़े स्कॉलर है, उन्होंने ऐसी 40 हदीसें सिलेक्ट की जो इस्लाम के, जनरल इस्लाम की हर तालीम के मुताबिक हो, हर तालीम को कवर करे, तो उसमें उन्होंने इस हदीस को भी चुना। इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इत्तक़िल्लाह हैथुमा कुंता, अल्लाह से डरो तुम जहां कहीं रहो। हैथुमा कुंता, तुम जहां कहीं रहो अल्लाह से डरो। मस्जिद में हो तो भी डरो, मार्केट में हो तो भी डरो, कॉलेज में हो तो भी डरो, शहर में हो तो भी डरो, शहर के बाहर हो तो भी डरो, कोई देख रहा है तो भी डरो, कोई नहीं देख रहा है तो भी डरो, दोस्तों के साथ हो तो भी डरो,
फैमिली के साथ हो तो भी डरो, हैसुमा कुंता, तुम जहां कहीं हो अल्लाह से डरो, अल्लाह का डर रखो, परहेजगारी रखो, तकवा रखो, इत्तकिल्लाह हैसुमा कुंता। फिर कहा वतबी सय्यतल हसनता तमहुहा, कोई गुनाह हो जाए तो उसके बाद में नेकी कर लो, वो नेकी उस गुनाह को मिटाएगी। मतलब गुनाह हो जाए तो आदमी क्या करता है, गुनाह करने के बाद एक और गुनाह करने के ताल्लुक से सोचता है, और एक गुनाह करने के बाद दिल चाहता है एक और गुनाह करूं, और एक और गुनाह करने के बाद दिल चाहता है एक और गुनाह करूं, यहां तक कि आदमी पूरी तरह से गुनाह में मुलविस हो जाता है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि अगर कभी गुनाह हो जाए तो क्या करो, नेकी करने के ताल्लुक से सोचो। और उलमा बताते हैं खास तौर से वो नेकी है तौबा, खास तौर से वो नेकी तौबा है, तमहुहा, वो नेकी उस गुनाह को मिटा देगी। और फिर फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अपने अखलाक को अच्छा बनाओ। मैं हदीस पूरी पढ़ रहा हूँ स्टार्टिंग से, इत्तकिल्लाह हैसुमा कुंता वतबी सय्यतल हसनता तमहुहा व खालिकिन नास बिखुलुकिन हसनिन, लोगों के साथ अच्छे अखलाक के साथ पेश आओ। तो ये तीन चीजें फरमाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और तीनों चीजों में बहुत बड़ी तालीम है एक्चुअली हमारे लिए। ये हो गई दूसरी हदीस। तीसरी हदीस, आई होप आप लोग ट्रेंड ढूंढ रहे हैं कि तीनों में क्या कॉमन दिख रहा है। तीसरी हदीस आप पढ़ रहा हूँ, सही बुखारी की हदीस है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, जो अल्लाह पर ईमान रखता है, क़यामत के दिन पर ईमान रखता है, फल युकरिम दैफहु, वो अपने मेहमान का इकराम करेगा। मेहमान आया तो लोग बोलते हैं ना, मेहमान आया बला आई, हाँ, या कोई सामने वाला कहता है मान ना मान मैं तेरा मेहमान। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो अल्लाह पर और क़यामत के दिन पे ईमान रखता है, फल युकरिम दैफहु। और फिर फरमाया मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, जो अल्लाह पर ईमान रखता है, क़यामत के दिन पर ईमान रखता है, फला युज़ी जारहु, अपने पड़ोसी को परेशान नहीं करेगा। पड़ोसी को परेशान करने के बहुत सारे तरीके हैं, डस्टबिन उसके दरवाजे के बाहर रख देना, या हो सकता है कि उसे तकलीफ पहुंचाना, उसे काम करने नहीं दे रहा है, पड़ोसी थोड़ा बहुत घर को रिपेयर कर रहा है, उसको जाके परेशान कर रहे हैं, या हो सकता है वो रिपेयर करने में इसकी नींद का वक्त का ख्याल नहीं रख रहा है, फला यूज़ी जारहु, पड़ोसी को परेशान ना करें। और फिर फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, जो अल्लाह पर ईमान रखता है, क़यामत के दिन पर ईमान रखता है, फलयकुल खैरन औ लियस्कुत, अच्छी बातें करे नहीं तो खामोश रहे। अल्लाह पे ईमान है तुम्हारा, क़यामत के दिन पे ईमान है, अच्छी बातें करो नहीं तो खामोश रहो। तो ये तीन चीजें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में बताया। अब मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये तीनों हदीसों को सामने रखकर आप में से कौन बता सकता है कि आखिर में ये मास्टर की है क्या, जिसके जरिए ये अच्छे अखलाक का दरवाजा हमारे लिए खुल जाए? कैसे होगा जी? ईमान, बिल्कुल सही। आप नोटिस करिए, बारकल्लाहु फीक, जज़ाकल्लाह खैर। आप नोटिस करिए, पहली हदीस में आया जो ईमान के मामले में सबसे कामिल है वो अखलाक के मामले में अच्छा होगा। दूसरी हदीस में आया तकवा, आया पार्ट पहले जिक्र है, उसी हदीस में थर्ड पार्ट में अखलाक का जिक्र है, यानी कुछ कनेक्शन है। अगर अखलाक विदाउट ईमान लाने की कोशिश करेंगे तो नॉट सक्सेसफुल होने के चांसेस ज्यादा नहीं है, सक्सेस लास्टिंग नहीं होगा। ईमान स्ट्रांग होगा तो अखलाक स्ट्रांग होना है। और थर्ड हदीस में जो आया जो अल्लाह पर ईमान रखता है, क़यामत के दिन पर ईमान रखता है, वो ऐसा नहीं करेगा, ऐसा नहीं करेगा, ऐसा नहीं करेगा, सब अच्छे अखलाक की चीजें हैं, मतलब ईमान के साथ कनेक्शन है। तो होता क्या है, कई बार लोग ये देखते हैं कि मेरा इससे फायदा है, इसके साथ अच्छा रहूं, इससे फायदा नहीं, इसके साथ अच्छा नहीं रहूं। लेकिन अगर हम अपने आप से ये कहें कि मैं अल्लाह से मेरा बहुत बड़ा फायदा है, अल्लाह ताला हमारा रब है, और एक ऐसा रब है जो अच्छाई का बदला ऐसा देगा कि इंसान सोच नहीं सकता है। अल्लाह ताला हमारा ऐसा रब है कि हर चीज रिकॉर्ड में होती है। हम कोई नेकी करते हैं, किसी को अच्छे से मिले और भूल गए, लेकिन अल्लाह के रिकॉर्ड में वो चीज आ गई। तो मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अल्लाह ताला जो हमारा रब है वो इंसानों के साथ भला करेगा, और हमें उससे उम्मीद लगानी चाहिए। मतलब अच्छा अखलाक तब हासिल हो सकता है जब कोई शख्स अपनी उम्मीद अल्लाह से लगाए। आप देख लीजिए, विरासत का मामला आया, कैसे लोग एक दूसरे के साथ बिहेव करने लगते हैं, रिश्तेदार के साथ कैसा बन जाता है, पैसों के मामले में, फायदे के मामले में कैसे बन जाते हैं लोग एक दूसरे के साथ। मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये एक ऐसी चीज है जिसके अंदर फायदा तब तक होता है जब तक कई लोग अच्छे रहते हैं, लेकिन फायदा नहीं होता है तो बहुत बुरे बनते हैं। और होता क्या है कि बहुत सारे लोग उम्मीद लगाते हैं लोगों से, मैं अच्छा हूं ना तो मैं तुम्हारे लिए अच्छा हूं। और कई लोग मैं आपको ये गारंटी देता हूं, रास्ते चलते 10 लोगों को पकड़ो, उनसे कहो तुम्हारी कहानी सुनाओ, मुझे तुम्हारी लाइफ स्टोरी सुनाओ, तो लाइफ स्टोरी में कहीं ना कहीं ये आ जाता है कि मैं सबके साथ अच्छा हूं और लोग मेरे साथ बुरे हैं। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं तो बहुत अच्छा रहा करता था, लेकिन फिर उसके बाद मैंने देखा कि कुछ फायदा नहीं होता है, तो मैंने अच्छा करना छोड़ दिया। कई लोग अपनी कहानी में बताते हैं, बोलते हैं मैं तो एक जमाना था, वो जमाने में बहुत अच्छा हुआ करता था,
जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, अलीगढ़ में था, तो उस जमाने में लोगों के साथ बहुत अच्छा था। फिर बाद में जिंदगी में आगे निकला, देखा अच्छा करके कोई फायदा नहीं होता है, तो उसके बाद मैंने अच्छाई छोड़ दी। ये बहुत सारे लोगों की कहानी है, लेकिन ये कहानी आती कहां से है? आती कहां से है? क्योंकि लोग अपनी उम्मीद लगाते हैं लोगों से, लोग अपनी उम्मीद लगाते हैं लोगों से। तो जब लोगों से मिलता नहीं है ना, तो डिसअपॉइंट हो जाते हैं। और लोगों से उम्मीद लगाकर डिसअपॉइंट होने का मतलब क्या होता है कि एक इंसान फिर अच्छाई के रास्ते को छोड़ देता है, फिर वो अच्छे अखलाक से बुरे अखलाक वाला बन जाता है। वो जिंदगी के एक दौर में अच्छा था, बाद में दौर में बुरा बन जाता है। तो ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि उम्मीद लोगों से लगाई है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? लोगों से उम्मीद लगाते हैं, लोग उम्मीद को तोड़ देते हैं, खुद के दिल को भी दर्द होता है, आखिर में अच्छाई हाथ से छूट जाती है, अच्छा अखलाक एक इंसान में से चला जाता है। फिर आगे की जिंदगी में वो एक बहुत ग्रफ किस्म का इंसान होने लगता है, बहुत ही रफ किस्म का इंसान होने लगता है। फायदे से फायदा रखने वाला इंसान होता है, उसको किसी और से केयर नहीं करता है, किसी की फिक्र नहीं होती है। वो दुनिया में एक इंसान अच्छा होने वाला था, लेकिन वो बुरा बन जाता है। क्यों बन जाता है? क्योंकि उसने उम्मीद लगाई थी लोगों से, और लोगों से उम्मीद लगाने के बाद डिसअपॉइंटमेंट मिला। तो इसका सोल्यूशन क्या है? उम्मीद लगाए कहां से? अल्लाह से। और जब अल्लाह से उम्मीद लगाएंगे तो अल्लाह ताला मायूस नहीं करेगा। अल्लाह ताला किसी को मायूस नहीं करने वाला है। वो अशकूर है, वो बंदों को बेहतरीन बदला देने वाला है। तो मेरे ब्रदर्स, यहां पर मामला ये है कि अच्छे रहना है किसके लिए? अगर ये चीज दिमाग में क्लियर नहीं है, अगर ये चीज ईमान के बुनियाद पर नहीं क्लियर है, आप ज्यादा दिनों तक अच्छे नहीं रह पाओगे, ये गारंटी है। ये सिर्फ जॉब पे जाएगा आदमी, स्माइल करके आएगा, घर में जाके बहुत बुरा रहेगा उल्टा। यहां पे बात यह है कि हमें अच्छा रहना है किसके लिए? किसके लिए? आप देखिए, कुरान की आयत है सूरह इंसान की, अल्लाह ताला ने अपने नेक बंदों के बारे में बताया, वो युतइमून ताम अला हुब्बिही, वो लोग खाना खिलाते हैं अल्लाह से मोहब्बत की वजह से। मिस्कीनों वो यतीमों वो असीरा, मिस्कीन को खिलाते हैं, यतीम को खिलाते हैं, कैदी को खिलाते हैं। और क्या कहते हैं? सुनिए उनके वर्ड्स। वो कहते हैं इन्नमा नुतिमुकुम लिवजहिल्लाह, हम तुम्हें खिला रहे हैं अल्लाह को खुश करने के लिए। ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअ वला शुकुरा, हमें तुमसे बदले में कुछ नहीं चाहिए। सुनिए, हमें तुमसे बदले में कुछ नहीं चाहिए, वला शुकुरा, शुक्रिया भी नहीं चाहिए। जैसे लोग बोलते हैं ना कि अरे कैसा आदमी है, शुक्रिया भी नहीं कहा, तो ये लोग तो कहते हैं वला शुकुरा, हमें तुम्हारा शुक्रिया भी नहीं चाहिए। वी डोंट इवन वांट योर थैंक यू। मतलब अच्छा कर रहे हैं किसके लिए? अल्लाह के लिए। अच्छा, सोचने की बात तो ये है कि इंसान तो है ही माने हुए अनग्रेटफुल। अल्लाह के करोड़ों एहसानों को पाने के बाद बोलते हैं अल्लाह ने दिया क्या? अब ऐसों से उम्मीद लगाएंगे और हम एक्सपेक्ट करेंगे कि हम अच्छाई कर रहे हैं उनके लिए और वो हमें उसके बदले में देंगे, वो हमें उसके बदले में अच्छाई देंगे, उनसे उम्मीद लगाएंगे, तो वन फाइन डे तो मायूस होना ही होना है, वन फाइन डे डिसअपॉइंट होना ही होना है। तो इसका क्या मामला है? इसका सोल्यूशन क्या है कि हम अपनी उम्मीदें चेंज करें। मेरे ब्रदर्स, अच्छा कर रहे हैं ना, अपने आप से कहें मैं कर रहा हूं किसके लिए? अल्लाह के लिए। बार बार, ये एक ऐसी चीज है कि एक बार मालूम होना काफी नहीं है, इसकी इंफॉर्मेशन एक बार मिल गई वो काफी नहीं है। ये एक ऐसी चीज है, एक लेसन है जो दिल में बार बार दोहराना पड़ता है कि मैं अच्छा कर रहा हूं किसके लिए? मैं अल्लाह के लिए कर रहा हूं। तो मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये अखलाक के ताल्लुक से एक बुनियादी बातें हैं, बुनियादी चीजें हैं। आखिर में मैं एक चीज के ताल्लुक से बता करके खत्म करूंगा, और वो है इस जिंदगी के इम्तिहान के ताल्लुक से, कि दुनिया की जिंदगी एक इम्तिहान है। यहाँ बहुत सारा ग्लिटर है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके अंदर एक इंसान का दिल लगने लगता है, बहुत सारी चीजें हैं जो उसकी ख्वाहिशात के मुताबिक होती है। कई बार उसे प्रेज मिलता है तो अच्छा लगता है, कई बार उसे जब ग्लिटर मिलता है तो अच्छा लगता है, तारीफ मिलती है तो अच्छा लगता है। अच्छा करके कुछ तारीफ ही नहीं मिली तो फिर आदमी अच्छाई को छोड़ने लगता है। लेकिन मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हम सबको याद रखना है, ये फाइनल नहीं है, ये सिर्फ टेस्ट है हमारा, और ये टेस्ट का रिजल्ट आएगा, और जिस दिन रिजल्ट आएगा तब देखेंगे लोग कि कैसे सायम और कायम के दर्जे तक कौन शख्स पहुंच रहा है, अच्छे अखलाक वाला शख्स पहुंच रहा है। और तराजू में सबसे भारी चीज दिखेगी अच्छा अखलाक। और जन्नत में जाने का सबसे बड़े रीजंस में तकवा और अखलाक है, और आलल जन्नत, जन्नत के आला दर्जे तक पहुंचने में अच्छा अखलाक रीजन है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत और उनकी कंपनी पाने में जरिया अच्छा अखलाक है। फाइनली हम सब इस आयत को पढ़कर गौर करके खत्म करते हैं इस लेक्चर को। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, सूरह मुल्क में सूरह 67 आयत नंबर 2, अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, वो जिसने मौत बनाई
اور زندگی بنائی کہ تاکہ وہ آزمائے کہ تم میں سے کون ہے جو اچھے کام کرتا ہے. یہ دنیا کی زندگی فائنلی تو امتحان ہے. آپ اچھے بن کے بھی رہ سکتے ہو, برے بن کے بھی رہ سکتے ہو. ایسا نہیں برا اخلاق آئے گا تو سانس لینا ختم ہو جائے گا اور ہم مر جائیں گے اسی سیکنڈ. ایسا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی شخص اگر برا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ غذا نہیں دے گا, کھانا نہیں دے گا, وہ بھوکا مر جائے گا. ایسا نہیں ہے. یہ دنیا کی زندگی امتحان ہے. اللہ تعالیٰ ہمارا امتحان لے رہا ہے کہ ہم ان چیزوں میں کیسے رہتے ہیں. اب ڈیسیشن ہمارا ہے کہ ہمیں پاس ہونا ہے یا ہمیں اس امتحان میں فیل ہونا ہے. اسی مطابق ہمیں کام کرنا ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی تمام معاملات میں کرنے کی توفیق دے. ان کے اخلاق کے معاملے میں بھی ہمیں ان کی اتباع اور پیروی کرنے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ایک حلال انٹرٹینمنٹ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کو دکھا رہے تھے. شوہر کہتا ہے کہ میں تمہارے لیے جان دینے تیار ہوں. ہاں, بیوی سے کہہ رہا ہے, حالانکہ جینا مرنا کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے سستی سے. لا الہ الا